Good morning, children. Next topic we are going to start is chapter number 10. This belongs to physics portion, light, reflection, and refraction. Reflection portion you have already done in your junior classes, but even before starting reflection, we have to do some introduction portion for light. So, I'm reading this portion, this introduction portion for light part from this book itself, and later on, we will be doing extra things. So first is we see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see in a dark room. This means what enables us to see the things around us. What makes the things visible? That is light. And from where we are getting natural light? That is from sun. So from sunlight, we are able to see the objects around us. So what does sun provides us? Sun provides us light to see the objects around us. An object reflects the light that falls on it, and this reflected light, when received by our eyes enables us to see the thing that that you have learned in your junior classes also. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. Transparent medium में से light आर पार हो जाती है, इसलिए आपको दिखती है. बट ओपेक ऑब्जेक्ट में से वो लाइट आपको नहीं दिखेगी बिकॉज लाइट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम दैट सर्फेस. There are number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirrors. When you stand in front of a mirror, you see your image, and left appears to be right, right appears to be left, and the case of the type of mirror you use, depending upon that, you see different formation of images in that. Sometimes in some mirrors you look short, sometimes in some mirrors you look tall, और कुछ भी हो सकता है मतलब. तो मिरर्स का जो इमेज फॉर्मेशन फिनोमिना है दैट इज़ रिलेटेड टू लाइट. की लाइट फॉल्स ऑन सम स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू यू एंड यू सी योर image. The twinkling of stars, that is actually due to this phenomena, refraction, that we are going to read in this chapter also. Beautiful colors of rainbow. सो ये सारे जो फिनोमिनाज हैं, बेंडिंग ऑफ मीडियम ऑफ लाइट, ये सारे लाइट के फिनोमिनाज हैं. लाइक आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि लाइट कैन रिफ्लेक्ट, इट कैन ट्रांसमिट, इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय अ मीडियम. इन दिस चैप्टर you will be going to read about reflection and refraction, two different phenomena. So next is, by observing common optical phenomena around us, these are common optical phenomena. Beautiful colors of rainbow and twinkling of stars, these are optical phenomena. Optical means related to light. Optics is the branch of physics actually which deals with light. So optical related to light itself. We may conclude that light seems to travel in straight line path. This practical you have done in your 6th standard also. Like you take 3 cardboard pieces and make hole in one straight line. You try to pass the light from a torch or a candle. If the holes are in same straight line, that light will pass on through that holes. If they are not in the straight line, then light will be obstructed. So this thing you have done in your junior standards also. The fact that light source casts a sharp shadow of an opaque object, this usually indicates a ray, as a object points to the straight line path, usually indicates as a ray of light. कि जो light है अगर उसके path में कुछ आ जाता है तो वो एक shadow भी create करती है, किसकी? opaque object की. Next is, अब जो light है आपकी, हमने आपके 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि देयर आर सम काइंड ऑफ रेडिएशंस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो लाइट को हम क्या बोल सकते हैं? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की एक फॉर्म है. दूसरा क्या है कि लाइट एक वेव की फॉर्म में काम करती है. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि कहाँ से निकल रही है? सन से निकल रही है. एक्चुअली सन गिव्स अस 3 काइंड ऑफ रेडिएशंस. वन इज़ योर इंफ्रारेड, next is your visible light, and next is your ultraviolet radiations. इंफ्रारेड जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं, विजिबल जिसकी वजह से हमें दिखता है, एंड अल्ट्रावायलेट यू ऑल नो दैट कॉज कैंसर एंड मे बी डेंजर हार्मफुल फॉर आवर स्किन सेल्स टू. सो ये जो 3 टाइप की रेडिएशन है ये हमें सन से मिलती हैं, पर हमें अभी किसकी बात करनी है? विजिबल रेडिएशन की, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं. एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ कि लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इस टॉपिक में यहाँ से यहाँ तक हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे दैट क्रिएट्स बेस फॉर दिस चैप्टर. सो लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स. फर्स्ट इज वी हैव डिस्कस्ड इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों तरह का नेचर पोजेस करती है और ड्यूअल नेचर है. अब इसका क्या मतलब है कि लाइट किसी सब्सटेंस से एब्जॉर्ब भी कर ली जाती है, तो वो मैटर, कोई भी मैटर अगर उसके पास में आया तो लाइट उसको
लाइट उस मैटर में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो लाइट उस टाइम पे हम बोलते हैं कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। और वेव लाइट सीधी डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल करती। अगर इसके पाथ में कुछ भी आएगा तो लाइट इसके कॉर्नर से बेंड भी कर सकती है, बेंड हो जाएगी। तो लाइट जो है वो वेव्स की तरह ट्रैवल करती है, लहरों की तरह से, रेडिएशंस की तरह से ट्रैवल करती है। तो ये थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। If I read from the book, if an opaque object on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in the straight line. And this effect is known as diffraction, that you are going to learn in your 12th standard. Then the straight line treatment of optics using ray fails. मतलब जो भी हम ये पढ़ रहे थे पहले कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा, वो गलत हो जाता है कब? जब लाइट के पाथ में एक छोटा ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लाइट उसके कॉर्नर से बेंड हो जाती है। तो नेक्स्ट इस यहाँ से हमें पता चलता है कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है। लेटर ऑन और डिस्कवरीज हुई जिसमें हमने ये देखा कि एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट बिकम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑफन बिकम्स इनएडिक्वेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। ये जो था कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, ये इनएडिक्वेट हुई लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेटर ऑन क्या बोला गया कि जो लाइट है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है और मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है। तो लाइट जो है दोनों की ही प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअली इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वेव और पार्टिकल, इट बिहेव्स एज बोथ, इट हैज़ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मीन्स डबल नेचर है, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। सो नेक्स्ट इज, in this chapter we will study the phenomena of reflection, refraction using straight line and basic concept यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, that is reflection of light, but before that 2-3 definitions we have to cover. Like first is ray of light. Ray of light you have already done in your junior classes, because this introduction is very trivial, that you have done in that you have done earlier also, so I am repeating it. Ray of light means the straight path in which light travels, that is represented by a straight line with arrow in front and point at the bottom. Wherever your arrow points, that means that is the direction of light traveling. Next is, what do you mean by beam of light? Beam of light means if bundle of such light rays are collectively taken, so that constitutes beam of light. मतलब बहुत सारी रेज अगर इकट्ठी हो गई तो दैट कॉन्स्टिट्यूट बीम ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल लेज़र गन यू हैव सीन, लेज़र पेन्स आते हैं आजकल, जैसे पॉइंटर होते हैं, लेज़र पॉइंटर्स होते हैं, उसमें से एक स्ट्रेट बीम निकलती है लाइट की, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? रे ऑफ लाइट। जो लेज़र की लाइट होती है वो हाईली डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में जाती है, कभी भी इधर उधर स्कैटर नहीं होगी। जैसे आपकी टॉर्च की लाइट होती है, टॉर्च की लाइट इधर उधर स्कैटर मिलेगी आपको, जैसे सपोज ये टॉर्च है अगर, तो लाइट ऐसे ही मिलेगी आपको, उसकी स्कैटर्ड लाइट मिलेगी, बट लेज़र की लाइट स्ट्रेट एक लाइन में ट्रेवल करेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। इफ लार्ज नंबर ऑफ सच लेज़र पेन्स आई अरेंज बैक टू बैक, then large number of rays I will be getting, and these rays are collectively known as beam of light. Now we have different kinds of beam of light, like one is convergent beam, divergent beam and parallel beam. What do you mean by convergent? This kind of bundle of rays which arise from certain source मतलब जहाँ से आपकी लाइट प्रोड्यूस होगी, और वो एक पॉइंट पर कहीं पर कलेक्ट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ लाइट रेज और बंडल ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड एज कन्वर्जेंट बीम. नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट. फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट सोर्स, एक छोटे से सोर्स से लाइट निकल रही है और वो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है. एरो मार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर बिकॉज वेर एवर यू पुट द एरो दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ traveling of rays. Next is C part, parallel rays. Parallel means the light rays which are moving parallel to each other, means equidistant from each other. Next topic is reflection of light. Reflection is again we have done in standard 6th also, you read standard 7, standard 8 also, और even 9th में भी reflection of sound आता है. तो रिफ्लेक्शन क्या है कि जब भी लाइट किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे फॉल करेगी. स्मूथ पॉलिश सरफेस क्या हो सकता है? मिरर आप लोग घर पे देखते ही हो कि सिंपल एक ग्लास का पीस है और उस ग्लास के पीस के बैक पर अगर मैं सिल्वर पॉलिश कर दूँ, वाई सिल्वर इज़ टू बी पॉलिश्ड? बिकॉज सिल्वर इज़ अ बेस्ट रिफ्लेक्टर. जितनी भी लाइट उसके ऊपर फॉल करती है, पूरी की पूरी लाइट को वो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. अगर यहाँ पर हम सिल्वर ना कोट करें इसके बैक पर,
और कुछ और मटेरियल कोट कर दें तो मे बी लाइट ट्रांसमिट हो जाए, पूरी की पूरी लाइट इसमें से बाहर निकल जाए, या फिर पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रखा, पेन की कैप मैंने रखी एंड आई कंसिडर्ड इट टू बी अ मिरर। आगे वाला पोर्शन वो पोर्शन है जिसमें आप अपना फेस देखते हो, और ये जो है, ये पीछे जो ये प्लास्टिक बॉडी दिख रही है, इसको आप एज्यूम करो कि दिस इज़ द शेडिंग पोर्शन। ये जो है वहाँ पे पॉलिश कर दिया है हमने सिल्वर पेंट, और इस सिल्वर पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इसके पीछे भी एक और पेंट की लेयर लगाते हैं, लेड ऑक्साइड पेंट की लेयर हम लगाते हैं ताकि सिल्वर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो सिल्वर की लेयरिंग हटे ना। तो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर अ मिरर, एंड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैट मिरर इट रिफ्लेक्ट्स बैक, इट बाउंसेस बैक. So what do you mean by reflection of light? The phenomena of bouncing back of light when it falls on some highly polished surface. अब वो polished surface mirror है। कई बारी हम लोग बेंचेस के ऊपर भी, प्लेन बेंचेस हैं अगर हमारे, वहाँ से भी हम लाइट को रिफ्लेक्ट होता हुआ देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं। कई बारी से एक प्लेन ग्लास में भी आपको अपनी इमेज दिख जाती है, तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू सी वेरी क्लियर इमेज ऑफ योर्स. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग higher percentage of light. So in that case, light, the image formation from that surface will be blurred, वो clear image नहीं होगी. So next is types of reflection, and next topic we are going to read is what are the laws of reflection. Laws of reflection again, that we have done in junior classes, but still let's have a look at that. This is mirror, and this represents this shading represent that this plain glass plate is polished silver at the back. So whenever a light ray is incident on this mirror obliquely means it makes an angle with the mirror, कुछ एंगल बनाने पे अगर मैं ऐसा लिखूंगी कि लाइट रे ऐसे जा रही है तो दैट मीन्स नॉर्मल इंसिडेंस है, 90 डिग्री पे फॉल कर रही है मिरर पे, बट दिस इज ऑब्लिकली फॉलिंग. तो ये जो एंगल बनेगा बीच में, हम एक 90 डिग्री के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस इज नॉर्मल, this is your incident ray. The angle made by incident ray and normal is called as angle of incidence and is denoted by angle I. And this ray, when it hits this point, hits the mirror, it bounces back, it comes back from the mirror. That is why you are able to see your image. If this light is completely absorbed by the mirror, you will not be able to see your image. So it comes back, it bounces back, and you see your image. And this ray is called as reflected ray. The angle made by reflected ray and this normal, that is called as angle of reflection. So what do you mean by reflection of light? The bouncing back of light when it falls on some smooth polished silver surface, that is reflection of light. And next question is, what are laws of reflection? Whenever light falls on some smooth polished surface, it obeys some laws. कुछ laws follow करती है वो, और उन laws को हम क्या बोल देते हैं? reflection of light. पहला law क्या है? reflected ray, incident ray and normal all lie in the same plane. सेम प्लेन में लाई करेंगे. मतलब अगर आपने टॉर्च की लाइट अगर पेपर के इस तरह से इस एक्सिस पे डाली है तो वो लाइट ऐसे ऊपर नहीं उठेगी, वो इसी प्लेन से ही वापस आ जाएगी. नेक्स्ट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. एंगल आई एंड एंगल आर आर इक्वल. नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. Like this is your regular reflection and this is your diffused reflection. From the diagram itself, if I want to explain you, then spot out the differences. Spot the difference. Like this is your plain mirror. बिल्कुल एक सीधी लाइन है मिरर की. ये जो पीछे है ये शेडिंग सिल्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए करी हुई है, पर ये कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं है. तो कोई भी ऐसा सरफेस जो इरेगुलर हो, जहाँ पर स्मूथ पॉलिशिंग नहीं हुई, इवन पॉलिशिंग नहीं हुई, वो सरफेस रफ माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक मिरर जिसमें से सिल्वर कोटिंग हट गई कहीं बीच में से, या आपका वाटर है, एक पॉन्ड में वाटर है, वहाँ पे भी हम कभी कभी अपनी इमेज देख लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो रफ सरफेस. तो इरेगुलर कोटिंग है सिल्वर की, या इरेगुलर सरफेस है, सरफेस में कहीं इरेगुलरिटीज़ है, बम्प्स हैं या डेंट्स हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पर अगर लाइट फॉल करेगी तो इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे. हाउ डू आई गेट टू नो कि दैट दिस इज इंसिडेंट रे? बिकॉज एरो इज पुट इनवर्ड्स, सो दैट मीन्स दिस इज फॉलिंग रे, वो इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है. एंड द मोमेंट इट हिट्स द मिरर इट कम्स बैक, इट बाउंसेस बैक.
and these are the bunch of reflected rays. And in the diagram itself we can see that incident rays are parallel to each other and reflected rays are parallel to each other. Next, in this case one difference is कि जो surface है आपका वो smooth नहीं है, और दूसरा surface क्या है कि incident rays are parallel to each other but reflected rays are not parallel. So this is irregular reflection, और it is also called as diffused reflection, या फिर इसको हम scattering of light, की light scatter हो गई, दूसरी directions में फैल गई, एक thick intensity of light नहीं मिली आपको, light scattered, ऐसे फैली हुई light मिल रही है आपको, यहाँ पर आपको good intensity की light मिलती है. So this is regular and diffused reflection. So next is you are already familiar with the laws of reflection. So these are the, let us recall these laws we have done, and these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical mirrors. What are spherical mirrors? We will be doing that. And one thing more, if you think that whether in the case of this irregular reflection and diffused reflection, whether in this case laws of reflection are obeyed or not, yes, they are obeyed. Since they are laws of reflection, since they are laws, so they are obeyed by this situation also. यहाँ पे भी एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, इक्वल ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर दिस पेयर ऑफ लाइट, सो लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल. This is angle I and this will be angle R. Similarly, if I mark angle I and angle R for this, so आप इसको 90 डिग्री पे ब्रेक कर दो, एंगल I और ये एंगल R हो गया आपका. तो आपका एंगल आई और एंगल R हमेशा हर एक पेयर ऑफ इंसिडेंट एंड एक जो बंच है, एक जो लाइन है, एक जो रे है, उसके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा एंगल आई और एंगल आर. भले ही आपको रेज सेम डायरेक्शन में नहीं दिख रही, पर आपस में जो एंगल आई और एंगल आर है दैट विल बी सेम. नेक्स्ट, वन मोर जनरल टॉपिक इज गिवन. यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. जो प्लेन मिरर है आपका, वो किस टाइप की इमेजेस बनाता है? प्लेन मिरर जो आप डेली लुकिंग ग्लास होता है आपका, जिसमें आप अपना खुद का फेस देखते हो, तो उसमें इमेज कैसी होती है? उसमें इमेज कैसी होती है, एक तो मिरर के अंदर बनती है वो इमेज, मिरर से बाहर नहीं बनती, एंड दैट काइंड ऑफ इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वी विल बी डूइंग दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल फर्दर इन दिस चैप्टर. इरेक्ट मीन्स सीधी सीधी इमेज होती है. ऐसा नहीं होता कि आप अप साइड डाउन दिखते हो, डाउन साइड अप दिखते हो, हेड की जगह पे और फीट की जगह पे ही दिखते हैं, सीधे दिखते हो आप. वर्चुअल मीन्स दैट इज इनसाइड द मिरर, दैट यू कैन नॉट टेक आउट द प्रिंट ऑफ दैट इमेज. नेक्स्ट इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जितनी हाइट के आप हो उतनी ही हाइट के आप दिखोगे. और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के बीच में क्या होगा, मिरर और इमेज का डिस्टेंस और मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. एंड इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट. लेटरल मीन्स साइड वाइज, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, साइड्स उल्टी हो जाती हैं, सो दैट इज लेटरल इन्वर्जन.